اکثر جب پاک روح کا ذکر آتا ہے، روح القدس کی بات آتی ہے، تو ہمارا ذہن فوراً اعمال کی کتاب کی طرف چلا جاتا ہے۔ پینتیکوس کے دن کی طرف چلا جاتا ہے، نئے عہد نامے کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاک روح کا کام اعمال کی کتاب سے شروع نہیں ہوا ہے، اس کی شروعات وہاں سے نہیں ہوئی ہے۔ پاک روح ازل سے موجود ہے۔ ہمیں پیدائش کے پہلے باب میں ہی اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ جب انسان نہیں تھا، جب قومیں نہیں تھی، جب کلیسیاں نہیں تھی، جب کوئی نبی نہیں تھا، پاک روح تب بھی کام کر رہا تھا۔ تب بھی خداوند کا روح اپنا کام کر رہا تھا۔ آئیے اس کے تعلق سے ہم آج سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے، ہم جانیں گے اس تعلق سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ جب سب نکال لیں بلند آواز سے آمین کہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گھیراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا آسمان اور زمین کو پیدا کر رہا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کی دوسری آیت میں زمین کی حالت بیان کی جاتی ہے، وہ منظر کشی کی جاتی ہے کہ زمین کی اس وقت حالت کیا تھی۔ زمین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ زمین کیا تھی، ویران اور سنسان، یعنی بے ترتیب، یعنی خالی، غیر آباد، افراتفری، یہ تمام چیزیں، کوئی شخص نہیں، کچھ بھی نہیں، بے ترتیبی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ مکمل تباہی نہیں، بلکہ ایسی حالت ہے جسے خدا یعنی پاک روح، جسے پاک روح ترتیب دینے والا تھا۔ خدا کی روح، ہولی اسپرٹ، جسے پاک روح ترتیب دینے والا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی خوبصورت بات نمایاں ہو رہی ہے کہ پاک روح زندگیوں کو ترتیب دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بے ترتیبی کچھ بھی نہیں ہے، افراتفری ہے، لیکن خداوند کے روح نے، پاک روح نے چیزوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اندھیرے سے روشنی، پانی سے خشکی، خالی پن سے زندگی۔ ہاللیلویہ۔ پاک روح نے کام کرنا شروع کیا۔ اندھیرے میں جہاں کچھ نہیں ہے، افراتفری، خالی پن، وہاں پر پاک روح کام کرنا شروع کر رہا ہے۔ بے ترتیب، خالی، غیر آباد، افراتفری سے بھری زندگیوں کو پاک روح ترتیب دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جن کی زندگی میں اندھیرا، جہاں پر افراتفری، بے ترتیبی، وہاں پاک روح ترتیب دینا شروع کرتا ہے چیزوں کو، زندگیوں کو۔
गौर करने वाली बात यह है कि अंधेरा था, सब कुछ बेतरतीब था, जिंदगी का नामो निशान नहीं था, लेकिन जहां पाकरू होता है वहां जिंदगी पैदा होना शुरू होती है। हो सकता है किसी भाई या बहन की जिंदगी, कोई भी हो सकता है जिसकी जिंदगी अंधेरे में चली जाए, मुश्किलात आ जाए, हो सकता है जिंदगियों में अंधेरा छा जाए, मुश्किलें आ जाएं, लेकिन अगर पाकरू है तो जिंदगियों का अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। सबसे बढ़कर याद रखिएगा, पाकरू टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। होली स्पिरिट मुंतशिर ज़हनों को सुकून देता है। जहां अफरा तफरी, बेसुकूनी आज की हो जाना है, कल की हो जाना है, लेकिन जब पाकरू होता है तो वो सुकून पैदा करना शुरू करता है, वो ठहराव लेकर आता है जिंदगियों में, वो हमारी फिक्रों को हमसे ले लेता है और हमारी जिंदगी इत्मीनान से भर देता है। बेमकसद जिंदगियां, यहां पर सब कुछ बेमकसद है, पानी है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन बेमकसद है, कोई भी किसी मकसद के तहत नहीं है। आज भी बेशुमार लोग जो ये कहते होंगे हमारी जिंदगियां बेमकसद है, असी की करना है। आप बेशुमार ऐसे लोगों को जानते भी होंगे, मिले भी होंगे, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते होंगे, ला साडी जिंदगी की असी की हुन, साडा की मकसद, हम तो ऐसे ही है। लेकिन यहां पर वाजिया है कि पाकरू बेमकसद जिंदगियों को एक मकसद दे देता है। जिनको जीने का मकसद नहीं मिलता है, करना क्या है, क्या हम क्यों दुनिया में आए हैं, पाकरू बताता है कि तू क्यों आया है। तू इसलिए आया है ताकि तू भी बरकत पाए और तुझसे कौमें भी बरकत पाए। हालेलुया। यहां पर बड़ा खूबसूरत लफ्ज, मैं थोड़ी इसकी तशरीह कर दूं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है कि यह सरमन तालीमी सरमन है, टीचिंग। लफ्ज रूह जो इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, जो शुरू से चलता आ रहा है, पुराने अहद में, नए अहदनामे में, इसके ताल्लुक से मैं चंद बातें, क्योंकि यूथ के बेशुमार बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये है। यही लफ्ज रूआख पूरी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, जो इब्रानी बाइबल है, शुरू से लेकर एंड तक यही लफ्ज चलता आ रहा है, रूआख, रूह के लिए, जिसका मतलब है, गौर कीजिएगा, जिसका मतलब है सांस, हवा, जिंदगी देने की कुव्वत। ये इस लफ्ज का मतलब है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं मुख्तसरन, यानी जिस तरह जिस्म सांस के बगैर मुर्दा है, अगर हमारी जिंदगियों में सांस नहीं है, हमारे जिस्मों में सांस नहीं है, तो वो मुर्दा है। उसी तरह कलीसिया पाकरू के बगैर रूहानी तौर पर मुर्दा है, कमजोर है, अगर रूहुल कुद्स नहीं है तो। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये इसके मायने बताते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बाइबल को समझना, आप ये देखें, दुनिया की कोई मुश्किल किताब हो, कोई साइंसी किताब हो, अगर हम उसे नहीं समझ सकते ना, तो ये तो खुदा का जिंदा अल्लाही कलाम है। एक एक लफ्ज अपने अंदर गहरे भेद रखता है। क्यों है, इसके मायने क्यों है? इसलिए खुदावन ने अपने नबियों को चुना, पैगंबरों को चुना, आज खादमीन को चुना, ताकि वो खुदा की बातों की तशरीह खोल खोल कर बताएं। यह मतलब है इसका।
क्योंकि जब हम असली मतलब को छू जाते हैं तो फिर हम उससे बरकत पा जाते हैं। इस लफ्ज का मतलब यानी अगर हमारी जिंदगियां भी खुदावन के पाखरू से मामूर नहीं है तो मतलब कि हम भी मुर्दा हैं। अगर किसी शख्स की जिंदगी में पाखरू काम ही नहीं करता, अगर किसी शख्स की जिंदगी में इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है, तो इट्स मीन कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। हम चल फिर तो रहे हैं, हम उठते भी हैं, हम खाते भी हैं, हम सभी कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ खुदावन का पाक रूह देता है। हालेलुया। जहां पाक रूह काम करता है वहां नई जिंदगी आना शुरू हो जाती है, उम्मीद आना शुरू हो जाती है, नई सोच आना शुरू हो जाती है। पुरानी सोचें सारी पीछे रह जाती है, जिंदगी जज्बे से भर जाती है। मैं अभी प्रेयर सेशन में एक बात कह रहा था कि ये सोच नहीं आने देनी, हम कैसे, हम क्यों, क्या पाकरू मुझसे भी काम ले सकता है, मैं तो ये, मैं तो वो, ये इब्लीस वसवसे पैदा करता है। खुदावन तो कहता है अब पुरानी चीजें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। मुकद्दस पालूस कहता है अब पुराना कुछ भी नहीं है, अब जो मसीह में है वो एक नया इंसान है। पाकरू हमें नई सोच देता है, हमें नया मुकाम देता है, हमें नई चीजें सिखाता है, हमें मसीह के काबिल बनाता है। पाखरू का किरदार जिंदगियों में, क्रिएशंस में इब्तिदा से ही अजीम रहा है, आज भी अजीम है, कल भी अजीम था और हमेशा अजीम रहेगा। आगे बड़ी खूबसूरत बात इस आयत में आती है, लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। इस पर भी मैं कुछ वक्त आप सबसे मुखातिब होना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा इसके भी ताल्लुक से, ये छोटे छोटे अल्फाज जिन्हें हम बोलते रहते हैं, इनका क्या किरदार है, ये कितने बड़े मायने लिए हुए बैठे हैं। जुम्बश करती थी, जो इसका असली लफ्ज है इब्रानी में मेरा कैफत, इसका मतलब है, और मैं आपको एक बात बता दूं, यह लफ्ज सिर्फ चंद जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यह लफ्ज सिर्फ चंद मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है बाइबल में। एक अस्तिशना, उसका 32 बाब और उसकी 11 आयत में अकाब के अपने बच्चों पर मंडलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। गौर करने वाली बात। और मैं एक बात बता दूं, अकाब क्यों अपने बच्चों पर मंडलाता है? क्योंकि वो उनकी हिफाजत करता है, इसलिए वो मंडलाता रहता है। उसके बच्चे नीचे होते हैं, वो ऊपर मंडलाता है कि इनके करीब कोई खतरा ना आ जाए। यानी जैसे अकाब अपने बच्चों की हिफाजत करता है, वैसे ही पाकरू हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। पाकरू तख्लीक पर, क्रिएशन पर, इंसान पर मंडलाता है, वैसे ही हिफाजत करता है। याद रखें, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, यानी आपके पैदा होने से पहले से ही पाकरू आपकी हिफाजत कर रहा है। हालेलुया। हम बने भी नहीं थे, हमें अभी बनाया भी नहीं था, हम दुनिया में, हमारा वजूद नहीं था,
हमारा दुनिया में कोई निशान, कोई वजूद नहीं था, लेकिन पाक रूह तब भी हमारी हिफाजत कर रहा था। क्या ही अजीम पाक रूह है। जोरदार ताली बजाएं। हाले है भी नहीं आसी, हाले आना है, लेकिन साडे ते पहले ही हिफाजत कायम कर दी। वो इब्तिदा से ही ईमानदारों की हिफाजत करता आया है, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन फक्त हम अपनी हिफाजत अगर उसके जिम्मे लगाएं तो, अगर हम अपनी हिफाजत पाक रूह के सपुर्द करते हैं तो वो हमारी हिफाजत करता रहता है। फक्त हम अपनी हिफाजत उसके जिम्मे लगाएं। वो ईमानदारों की हिफाजत करता है, ईमानदारों के ऊपर रहता है, लेकिन उनके ऊपर जो उसकी अहमियत को जानते हैं। यह भी याद रखें, खुदा के रूह की इतनी अहमियत है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह से पूछा गया कि कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, कौन सा ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं है। इतनी बड़ी बात यीशु ने कही, इतने बड़े अल्फाज मसीह खुदावन ने कहे। उसने कहा दुनिया दा हर गुनाह माफ है, इवन के मैनू भी बुरा भला कोई कह देगा ना, मैं वो भी माफ कर दूंगा, लेकिन पाक रूह के खिलाफ एक बात नाकाबिले माफी है। ਇਹਦਾ ਤੇ सोचना ही ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ माफी मिल जाएगी। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं कि आज लोग पाक रूह के ताल्लुक से, पाक रूह के बारे में बात करते हुए डरते ही नहीं है। मुझसे एक दफा सवाल किया गया, एक नौजवान ने पूछा, अमन भाई बाइबल तो कहती है खुदा के फजल से सारे ही माफ हो जाएंगे, खुदावन का फजल काफी है, हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां खताएं होती ही रहती हैं, जब तक खुदावन नहीं आ जाएगा हम तो करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, ये बदन है, भूल होती ही रहेगी। खुदा का फजल, हम उसके फजल के नीचे से गुजर कर नई जिंदगी पा लेंगे। त्या दोजक की नाली है, आग की नाली है। आज ये भी सवाल का जवाब ले लें, और नाली जिनके लिए माफी बंद। आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं पाक रूह के ताल्लुक से, कई डिनोमिनेशंस बन गई हैं, कई लोग खड़े हो गए हैं, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। इसीलिए मेरे अजीजों, कलाम को समझना जरूरी है, सुनना बेहद जरूरी है, समझना उससे भी जरूरी है। जब हम समझ कर चलते हैं कि कलाम की कौन सी चीजें हैं जो बहुत खास है और उन पे हमें बहुत मतात रहना है। आज मैं आखिर में, हम इसको आगे लेकर चलेंगे, अगले जुमा को हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे। हालेलुया। हमने सीखा है कि पाक रूह का हमारी तख्लीक में क्या किरदार है, हम बने कैसे हैं, वो अज़ल से, सब कुछ उसी से। अगर हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स है तो हम जानदार हैं, हमारे अंदर जान है। जिन कलीसियाओं में पाक रूह है वो रूह से भरी हुई जिंदा कलीसियाएं हैं। पाक रूह हमारी हिफाजत करता है। अगले जुमा हम इससे थोड़ा और आगे जाएंगे। आज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, कोई मेरा भाई या बहन, अगर आप महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी वीरान है, सुनसान है, अंधेरी है, बेतरतीब है, याद रखें आज पाक रूह ईमानदारों पर मंडला नहीं रहा। आज पाक रूह ईमानदारों पर मंडला नहीं रहा, बल्कि वो ईमानदारों के अंदर रहता है। हालेलुया। हमारी जिंदगियों को
तरतीब देने के लिए, जिंदगियों को अंधेरे से निकालने के लिए, नई तख्लीक की शुरुआत करने के लिए। फक्त बात इतनी सी है, आप उसे मौका दें, आप उसे मौका दें। पाकरू मैं देता हूं तुझे मौका। अगर मेरी जिंदगी में बेतरतीबी है तो तरतीब पैदा कर, अगर जिंदगी नहीं है तो जिंदगी आ जाए। अगर रूहानी कमजोरी है तो जब तू आ जाएगा ये कमजोरी जोर में बदल जाएगी। खिदमत में, किसी भी जगह पर, खानदान में, कोई भी जिंदगी का मरहला है, आप पाकरू को काम करने का मौका दीजिए। आइए हम दुआ करेंगे। आप खड़े हो सकते हैं आजादी से।